नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जहां पे कोविड को लेकर आपके मन में जो भी शक, शुबा और शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उसके समाधान को लेकर हम आपके साथ मौजूद होते हैं। कोशिश ये होती है कि आखिर जो कुछ भी दिक्कतें, परेशानियां इन जनरल आप झेल रहे हैं, जिनसे आपका वास्ता पड़ रहा है, उनको हम दूर कर सकें। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स भी जुड़ते हैं, इसके माध्यम से आपके सवालों का हम जवाब उन तक पहुंचाते हैं। आज हम विशेष रूप से अगले 1 घंटे में बात करेंगे लॉन्ग कोविड की, यानी कोविड होने के बाद लगातार किस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। इस 1 घंटे के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आर्यन, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सकल। Thank you very much. As my colleague Arendra mentioned, Dr. Speak, this is a 1-hour show specifically dedicated to COVID. All your queries related to COVID, and today our phone lines as usual will be open from 3 to 4. We will be joined by eminent panel of doctors, and today we will be taking all your queries related to long COVID syndrome and everything that is associated with it, including what is black fungus infection, post-COVID complications and everything that comes with that. And Dr. Sanjeev Sinha, Professor, Department of Medicine's AIIMS, he is with us, I believe, AIIMS Delhi. He's joining us on the show on Dr. Speak. Dr. Sinha is with us. And also Dr. Suryakant will be joining us, HOD Respiratory, yes, he's there, Medicines and member Corona Task Force from Lucknow, joining on the show. Thank you very much, both of you doctors, for joining us. I'm going to quickly start with Dr. Sinha. Dr. Sinha, since we just talked about the long COVID syndrome and today we'll be taking mostly questions pertaining to that, let's explain to our viewers what exactly do we understand from long COVID syndrome, sir? COVID, like when patient have infection of COVID infection, and after some time they recover, like after 10 to 14 days, and they become COVID negative, then we send them home, or if they are at home quarantine, then they come out of the whole quarantine and they can go to the office and they can do the day-to-day activity. So what we have seen, many patients have complained that they have different kind of problems. So I would like to tell you what are the common signs and symptoms patient feel as a after COVID infection, and we call it post-COVID syndrome, or we can call it post-COVID sequelae or long-term COVID symptoms after infection when patient get recovered from the infection. So there are different kind of symptoms. Like if you have neurological or CNS symptoms, patient can have cognitive impairment, they have loss of memory, they have loss of concentration, then they have commonly complaint of headache. They have very common complaint of headache, then they have sleep disturbances, they have dizziness, they have delirium, especially in the elderly patient. And then many patients have complaints of like depression and anxiety. This is very common complaint. We see our OPD, like post-COVID OPD, where we see patient complaint of depression and anxiety. And then they have different kind of symptoms, like they have tinnitus, they have ear pain, they have sore throat, they have sometimes complaint of dizziness. So there are some complaints related to lung, like many patients who had severe kind of corona infection or COVID infection, they develop ARDS, and after recovery or sometime after recovery, they develop post-COVID lung fibrosis. So this is very common nowadays we are seeing. And in these patients, they have complaint of low oxygen level. When we discharge them, they unable to maintain the oxygen saturation level at home for long duration. So what we advise in these patients, we ask them to take oxygen concentrator or oxygen cylinder at home and keep taking oxygen for some duration, whatever time required, and they keep in contact with the doctor, and if required, then we readmit. Otherwise, we have seen many patients who have post-COVID lung fibrosis, they become all right with a certain period, like 4 to 6 or 8 weeks, and they become normal after some time. And we have certain kind of
special treatment for them like antifibrotic drugs or some more drugs, bronchodilator, and they respond to them. Then we have shortness of breath, we have dry cough. Dry cough is also very important symptoms in these patients. And we have skin complaints like they have itching, they have dryness in the skin, and then we have some generalized symptoms like patient have complaint of fatigue, they have kind of low-grade fever. This is also very important symptoms they have post-COVID or in post-COVID syndrome. And then they have generalized body ache also, and some patients have complaint of palpitation. They are complaining they have palpitation, they have chest pain, chest tightness, and some patients have gastrointestinal symptoms like they have nausea, and they have kind of feeling of vomiting, diarrhea, loose motions, and some patients have constipation, and some patients complain of abdominal pain. So some patients also have complaints like joint pain and muscle pain. So these are some common complaints we have seen in our setup, and what I'll take one more minute. Sure. Because it's a very important topic. Please go ahead. We have found that most common symptoms is fatigue in post-COVID syndrome, followed by cough, headache, myalgia, loss of taste, loss of smell, sore throat, shortness of breath, fever, low-grade fever. Fever is especially low-grade until there is any secondary infection. Right, and then they have kind of loose motion and abdominal pain. So I just want to tell briefly about this, and I will come back again. डॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा जी, एक चीज महत्वपूर्ण ये कि जो आपने तमाम सिम्टम्स बताए, कई बार पोस्ट कोविड जो ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, क्या ये पोस्ट कोविड होने की वजह से हैं, या किसी जो सामान्य तरीके से जो ये दिक्कतें होती, उन दोनों में जो अंतर होता उसको लोग कैसे समझें और कैसे उसके उपचार के लिए क्या उनको करने की जरूरत है? हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है. देखिए, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को, मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा. मैं ये बताना चाहूंगा, कोविड डिजीज 3 तरह की होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन. माइल्ड डिजीज में क्या होता है कि पेशेंट को फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, और उनको कोई ऐसे, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहेगा. तो ऐसे पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप घर पे ही रहें, होम आइसोलेशन में रहें, और अगर जरूरत पड़ती है, आपका ऑक्सीजन लेवल 92% से कम होने लगता है, आपको सांस फूलने लगता है, डिसोरिएंटेशन होता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो आप तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें या कोविड सेंटर पर आएं, और वहां पर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको एडमिट करके ऑक्सीजन दी जाएगी. इसको मॉडरेट स्टेज कहते हैं. इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम कोविड निमोनिया कहते हैं, और साथ में कुछ और प्रॉब्लम होती है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं, कुछ पेशेंट को वोमिटिंग भी होती है. तो हम ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं पहले, अगर जरूरत पड़ता है तो और डिवाइसेस यूज करते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है, और अगर उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, पेशेंट का सैचुरेशन 80% से कम हो जाता है, तो उस केस में हम पेशेंट को एनआईवी देते हैं, और अगर इससे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करके हम लोग वेंटिलेट करते हैं. और आईवी इंजेक्शन जैसे रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स, ये सब हम इस स्टेज में देते हैं. जी. तो ये तो एक चीज ये हो गई. और जब पेशेंट ठीक हो जाता है, उसको हम जब डिस्चार्ज करते हैं 10 से 14 दिन के बाद, जी, तो या घर पर ही पेशेंट जो माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, 85% के करीब इस तरह के पेशेंट होते हैं, केवल 10 से 15% पेशेंट को ही केवल एडमिशन की जरूरत होती है. जी, Dr. Sinha, we have our first caller. I'm sorry I'm interrupting you because we don't want to lose the caller. You may continue with your answer, sir. Let's take the first question. Preeti joining us on phone line from Noida, and also welcoming Dr. Suryakant again on the show from Lucknow. Preeti, अपना सवाल पूछिए. हाँ जी, हेलो जी, सवाल पूछिए. हाँ जी, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे बेटे को 2 महीने पहले हुआ था, एंड नाउ बहुत माइल्ड सिम्टम से ही वाज रिकवर्ड. तो अब उसे मतलब थोड़ा जल्दी वैक्सीनेशन लेना है एज ही हैज टू गो अब्रॉड, जबकि गाइडलाइंस हैं कि वो कर सकता है, बट उसमें कोई रिस्क तो नहीं है बिकॉज 3 months का जो बोलते हैं टाइम, तो ये अगर हम 2 महीने बाद ले लेते हैं तो उसका कुछ ऐसे रिस्क या हार्म? आपके बेटे की उम्र क्या है? 25. मे बी उनके साथ मदर भी जाए तो वो 50 हैं. ओके, डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे?
मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, मैं पूरी बात इनकी समझ नहीं पाया, एक बार ब्रीफ वो कर ये दे कहना मुझे। चाह रहे हैं कि उनके बेटे को कोविड हुआ था और उसके बाद वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उस अपने बच्चे को, क्योंकि उनको विदेश जाना है। ऐसे में वो किसी प्रकार के संभावित खतरे के बारे में जानना चाहती है, वैक्सीनेशन से होने वाले खतरे को लेकर। लाइक बिफोर 3 मंथ्स अगर लगवा लेते 3 महीने से हैं, पहले अगर वो लगवा रही है तो 2 मंथ्स बाद, एंड मतलब माइल्ड सिम्टम्स थे। मेरे ख्याल से इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, इसीलिए 3 महीने की बात कर रही हैं, क्योंकि कोवैक्सीन में तो 2 डोजेज के बीच में 1 महीने फर्स्ट का डोज लगवानी है सर, डॉक्टर फर्स्ट सूर्यकांत जी, लगवानी। उनका बेटे को कोविड हुआ था और कोविड ठीक होने के 3 महीने के बाद में वैक्सीन लगवाने का अभी प्रोटोकॉल है, लेकिन वो 2 महीने पर ही वैक्सीन लगवाने के बारे में जानना चाहती है। उन्होंने अभी कोई वैक्सीन का शॉट नहीं मैं लिया। समझ गया। अब मेरे ख्याल से ये बाहर जाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी लगवाना चाहते हैं, am I right? जी जी, तो देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बाहर जाने वालों के लिए रिलैक्सेशन किया हुआ है, स्पेशल प्रोटोकॉल उनके लिए डिजाइन किया हुआ है। आइडियली तो अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको 3 महीने का अंतर होना चाहिए कोविड के ठीक होने के बाद और वैक्सीन लगवाने के पहले। तो वैक्सीन और कोविड के बीच में 3 महीने का अंतर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी को आउट ऑफ कंट्री जाना है, अर्जेंट है, उसकी प्रायोरिटी है, तो वो पहले भी लगवा सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ शहर में भी एक हॉस्पिटल को इसीलिए पर्पजली रखा गया है। ऐसे ही आप जिस शहर में रखते हैं वहां भी आप पता करिए, तो स्पेशली दोज हु आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ कंट्री उनके लिए एक अलग रखा गया है और उनको टाइम शेड्यूल से पहले भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ऐसा प्रोटोकॉल में रिलैक्सेशन है, बिल्कुल लगवा सकते हैं। जी, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम को अगर हम समझने की कोशिश करें, डॉक्टर सूर्यकांत, इस पे थोड़ा अगर आप खुलासा करें। मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत जानकारी है इसको लेके, एंड देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग्स पीपल एज फार एज दिस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इज कंसर्न, और खुद को कैसे बचाए इससे? जी देखिए, अभी डॉक्टर संजीव ने बहुत अच्छा बताया, बहुत विस्तार पूर्वक बताया। मैं इसको संक्षिप्त करके बता देता हूं। देखिए, जो कोविड पीरियड होता है वो लगभग 28 दिन की एक कोरोना साइकिल जिसको हम बोलते हैं, वो दैट इज अ 28 साइकिल। तो कोविड पीरियड को हम जो फर्स्ट 4 वीक्स है या 1 महीना है वो हम कोविड पीरियड कहते हैं। अब 1 महीने के बाद जो प्रॉब्लम आती है उसको हम 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में जो 2 महीने का पीरियड है इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्यूट कोविड पीरियड। तो ये जो फर्स्ट 2 मंथ ठीक होने के 2 महीने बाद तक जो प्रॉब्लम रहती है ये एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम्स या पोस्ट एक्यूट सिंड्रोम। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम 3 महीने के पश्चात भी, यानी कि कोविड शुरू हुआ और उसके 3 महीने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम बनी रहती हैं, इनको हम कहते हैं पोस्ट क्रॉनिक कोविड प्रॉब्लम्स या फिर लॉन्ग कोविड। तो देखिए, लॉन्ग कोविड वो है जब आपकी कोरोना प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके 3 महीने के बाद भी आपको समस्याएं बनी रहती हैं, उसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। कुछ लोग इसको क्रॉनिक पोस्ट कोविड कहते हैं, कुछ इसको पोस्ट कोविड सिक्वली भी कहते हैं, बहुत सारे नाम्स हैं। और एक हम लोगों ने देश के इंपॉर्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट ने मिलकर, करीब 25-26 पल्मोनोलॉजिस्ट मिलकर एक पोस्ट कोविड केयर के नाम से एक डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया है। वो डॉक्यूमेंट हमने पब्लिश किया है इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीज एंड अलाइड साइंसेज। ऑब्वियसली आई वाज द को-ऑथर इन दैट पब्लिकेशन। तो एक हम लोगों ने डायरेक्शन भी देने की कोशिश की है कम्युनिटी को भी और अपनी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को भी। आप मीडिया वाले भी उसको जा सकते हैं, वो इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीज एंड अलाइड साइंसेज के दिसंबर 2020 इशू में है और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि भाई लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड, जिनको हम कॉमनली कहते हैं लेमेज लैंग्वेज में या मीडिया के डोमेन में या पब्लिक डोमेन में, उसमें 2 तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्याएं तो लंग से संबंधित हैं, क्योंकि आपको मालूम है मैं लंग स्पेशलिस्ट हूं और कोरोना जो है वो भी उसका सॉफ्ट टारगेट जो है वो लंग होता है, वल्नरेबल जो ऑर्गन है वो हमारा लंग है। तो एक प्रॉब्लम तो हो सकती है जिसको हम पोस्ट कोविड पल्मोनरी सिक्वली कहते हैं, यानी फेफड़े से रिलेटेड समस्याएं, और दूसरी होती है वो नॉन पल्मोनरी, यानी फेफड़े के अलावा भी समस्याएं। अब जैसा अभी डॉक्टर संजीव बता रहे थे कि सिर से लेके पैर तक ऐसी कोई सिस्टम बॉडी का नहीं है जहां पर पोस्ट कोविड प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और पल्मोनरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है सूखी खांसी आना, ड्राई कफ होना, कभी कभी खांसी के साथ बलगम आना और सांस फूलना, और कभी कभी तो लॉन्ग कोविड में भी थोड़ा ऑक्सीजन डीसैचुरेशन, यानी ऑक्सीजन जो है हमारा वो भी काफी नीचे बना रहता है और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की भी कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है। राइट सर। तो ऐसे लोगों में हमें देखना पड़ता है कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर क्या पोस्ट
कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो नहीं हो गई है जी। अगर पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस में आपके दर्शकों को ऐसे समझा दूं कि जैसे एक जमाने में कपड़ा फट जाता था तो लोग रफू कर देते थे। सो बेसिकली इट्स अ हीलिंग एंड इंजरी टू द लंग फॉलोड बाय रफू। तो रफू जैसे कपड़े में हो जाता है वैसे इंजरी लंग, चूंकि निमोनिया हुआ है, एआरडीएस हुआ है, लंग में इंजरी हुई है, तो उसके बाद थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस लंग में हो जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब जिनमें ज्यादा हो जाती है तो जितने लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है तो लंग का काम है ऑक्सीजन को अंदर करना शरीर पे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो वो हिस्सा जिसमें फाइब्रोसिस हो जाती है फेफड़े में, वो हिस्सा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भाग नहीं ले पाता है। तो हमारी जो फेफड़े की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन, तो डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए फेफड़ा दे नहीं पा रहा है, तो नेचुरली जब हम चलेंगे या कोई हम मेहनत का काम करेंगे तो हमारी सांस फूलती है। तो इसमें एक लंग एक्सपर्ट को दिखाने की जरूरत पड़ती है। ये जनरल फिजिशियन के लेवल का काम नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि आप पल्मोनरी एक्सपर्ट से सलाह लें और क्या थोड़े दिन ऑक्सीजन सपोर्ट की आपको जरूरत है, क्या थोड़े दिन और किसी मेडिकेशन की जरूरत है, क्या एंटी फाइब्रोटिक मेडिकेशन की जरूरत है। दिस विल बी डिसाइडेड बाय पल्मोनरी एक्सपर्ट। राइट सर। डॉक्टर सुरकांत, मैं आपके पास आता हूं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से, बाबू राम जी हैं फोन लाइन पे, उनका सवाल ले लेते हैं। बाबू राम जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा नाम बाबू राम गोपाल है सर। मुझे प्रॉब्लम है सर, 29 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ था सर जी। और जो है कि मैं तब होम क्वारंटाइन से मैं सही हो गया। अभी मैं सब वैक्सीन लगवाना चाहता हूं, तो मैं क्या सलाह, मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं कि क्या कर सकता हूं? देखिए 3 महीने का इंतजार करिए। अब देखिए आपको कोविड संक्रमण हो गया, ये आपका दुर्भाग्य है, लेकिन उसके साथ एक सौभाग्य निकल आया। वो सौभाग्य ये निकल आया कि संक्रमण के बाद इम्यूनिटी पैदा हो जाती है वायरस के, कोविड संक्रमण के बाद। अब ये इम्यूनिटी यूजुअली मिनिमम 3 मंथ्स तक रहती है, 90 दिन तो रहती है, 6 महीने भी रह सकती है, उससे ज्यादा भी रह सकती है जी। तो अभी फिलहाल आपको संक्रमण हुआ है, आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है, आपके अंदर एंटीबॉडी कोविड के खिलाफ बन चुके हैं, आप उनका मजा लीजिए, आप उनको एंजॉय करिए। और 3 महीने के बाद जब एंटीबॉडी लेवल कम होने लगेगा, इसके खिलाफ इम्यूनिटी लेवल कम होने लगेगा, तब आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है। एक दर्शक है फेसबुक पेज पे हमारे अमिता दयाल, वो सवाल उनका है कुल मिला के प्रोफेसर सेना इसका जवाब आपसे चाहेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि वो सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहे हैं, वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, लेकिन लगातार घर में रहते रहते और सोशलाइजेशन से बचते बचते अब वो मानसिक तौर पे परिवार के तरीके से परेशान हो चुके हैं। अब उनको कैसे रहें उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर सिन्हा क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया इसमें कि काफी पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, उनको एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, अल्टरली पेशेंट उनको डिलीरियस हो जाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाती है काफी पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट अगर उनका जो है आइसोलेशन पीरियड ओवर हो गया है तो उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि एक तो अपने घर से जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आपस में मिलकर रहे हैं, ठीक है, बात करते रहे, अपने थॉट्स शेयर करते रहे, साथ में जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे फोन से बात करते रहे, और अपने नियर बाई एरिया में पार्क है तो उसमें मास्क पहन के बाहर जा सकते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। उनकी जो हॉबीज हैं, जैसे कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग टेलीविजन देखते हैं, कुछ लोगों को हॉबीज होती है कि उनको बुक रीडिंग की हॉबी होती है, या आजकल इंटरनेट पे काफी लोग अपना सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीजों को करें, साथ में हेल्दी डाइट लें, वो अपनी हाई प्रोटीन डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें, और योगा मेडिटेशन जो भी कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज वो करें, और चेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इसमें अच्छा होता है कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप साथ में ब्रेथ होल्डिंग कर सकते हैं, और साथ में 6 मिनट वॉक घर में कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं एडवाइस करूंगा उनको करने के लिए। और बी पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव रखें, अपना मॉरल ऊपर रखें। Let me go back to Surikant. Dr. Surikant जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगी. Who all are at the risk of actually developing post-COVID fibrosis? Any specific comorbidities the patients? Is there any pattern to it? Actually, there are so many factors for developing the post-COVID sequelae or post-COVID syndrome or prolonged COVID. One of the important factors are first the age of the patient. If the patient is elderly, chances of post-COVID problems are more. Number 2,
the severity of the disease. If the disease to begin with, it was a severe COVID, then of course chances of getting the long COVID problems are higher. Number 3, the comorbid conditions. For example, other than the COVID infection, if the patient is having associated diabetes mellitus, hypertension, heart disease, liver disease, chronic lung disease, chronic kidney disease, cancer, or any other chronic disease. So underlying comorbid condition is there, then chances are that he may or she may suffer more problems of long COVID or post-COVID. Another another risk factor for the post-COVID is the duration of hospitalization. If the patient has been hospitalized for a prolonged period, then definitely he or she is a higher risk of developing more and more post-COVID problems. Another factor is the duration which he or she is spent on the ventilators, on the NIV, on the high oxygen support. So means the kind of treatment given which was of high grade. So that also a major risk factor. And one other important factor is that how early intervention has been done in the form of treatment to the patient. If early intervention, if you have been treated early properly, then less chances of less post-COVID problem. If your treatment has started late, your real treatment, your exact treatment, your appropriate treatment has started late, then of course chances of the post-COVID of course complications are more. So these are the factors which led to the chances or risk of developing more post-COVID. जी, एक दर्शक राजस्थान के टोक से हमारे साथ में यशवंत जी फोन लाइन पे मौजूद है। यशवंत जी पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते सर, मेरा सवाल यह है कि जो कोरोना का मरीज था फिर बाद में ठीक हो गया, उसके बाद उसको सिम्टम दिखने लगे, उसके घुटने दर्द हुए सर और जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द रहने लगा, तो सर किस तरह का सिम्टम है और इसके लिए क्या उपाय किए जाए? प्रोफेसर सिन्हा, ये एक आम समस्या है कि लोगों के शरीर में अलग अलग अंगों में दर्द रहने की, खासतौर से पैरों में बहुत ज्यादा लोग दर्द महसूस करते हैं। ये सीधे तौर पे कोविड से जुड़ा हुआ है और इसके उपाय कोविड सिंड्रोम है क्या ये? एग्जैक्टली जी बिल्कुल है। जैसे मैंने अभी आपको डेटा बताया भी कितने % होते हैं। मैंने बताया कि सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम में या नॉन कोविड जो होता है उसमें ये फटीग है, जॉइंट पेन है एंड मसल पेन है। ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। आप हमारे पोस्ट कोविड ओपीडी जो है उसमें जो भी पेशेंट आते हैं फॉलोअप के लिए, उनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स देखा गया। साथ में और पेशेंट जो हेडेक की कंप्लेन करते हैं, लो फील करते हैं, कफ ड्राई कफ होता है, कुछ लोगों को कफ विद एक्सपेक्टोरेशन भी होता है, लूज मोशन, एब्डोमिनल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले मैंने बताया कि पेशेंट को पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपनी लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें, चेस्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मैंने बताया 6 मिनट पॉक टेस्ट, आप ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट, अनुलोम विलोम, या ये सब एक्सरसाइजेस करें। ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, अपने को पॉजिटिव रखें। जो भी आपकी हॉबीज है उसको फॉलो करें। और अगर जरूरत पड़ता है, माइल्ड गट फीवर या कुछ और सिम्टम्स हैं, तो पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। अगर कुछ लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं, आपको जॉइंट पेन है या मसल फटीग है, तो उनको मल्टीविटामिन के साथ हम लोग पैरासीटामोल एसओएस दे सकते हैं। Let me also quickly ask this question to Dr. Suryakant. Does low-grade fever persist usually post-COVID? That also adds to a lot of anxiety. And how do you deal the medication specifically for the low-grade fever post you are detected negative? Yes, low-grade fever is the usual post-COVID problem for majority of the patient. And if the fever lies between 99 to 100, then nothing to worry. You see, most of the people, they start investigating our fever because the COVID has gone, why fever is persisting. Actually, inflammatory process is still going on. And that's why this fever may persist even for weeks together or even months together after the COVID, you have recovered from the COVID. So that fever should be considered as usually the normal post-COVID course symptom. It should not be considered as a secondary infection and you started taking so many antibiotics, so many other medications unnecessarily. Just have that, of course, the patients. Just consult your doctor. Doctor must be in the loop that yes, I'm patient
can be investigated by simple investigation. For example, the complete blood count and a new chest X-ray. That's all. And of course some CRP, like some inflammatory markers. That's all. Otherwise, you need not to worry, because this fever can persist, and usually it is related with the time. As the time lapses, it goes off. So, but that medication part, normally one would want to go for a Crocin or a Dolo or a paracetamol. Everybody would not really call a doctor and ask. This is, a usual practice for these low-grade fevers. Should one take an informed call as to what antibiotic has to be taken in these low-grade fever situations? No, I don't recommend any antibiotic for this situation. The only thing which I recommend is that you first record the temperature. So many people, they are feeling that they are having fever, but it is not recorded. Absolutely. Number one. So this should be recorded on thermometer, number one. If it is more than 99 degrees Fahrenheit, then it is fever. So if you are having temperature more than 99, suppose 99.6, 99.8, 100 or 100.2, then of course you can take the paracetamol SOS. Right, not on regular basis. So whenever you record the temperature, if it is more than 99, you can take the paracetamol. Otherwise, regular paracetamol is not recommended, and without recording the temperature, it is not Very recommended. important. Please do not pop up pills without an informed view on it. Yes, Exactly. caller. दर्शक हैं हमारे साथ में गुरुग्राम से कुलदीप फोन लाइन पे मौजूद है। कुलदीप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है, मुझे अप्रैल में कोरोना हुआ था और 1 मई तक ठीक हो गया था, 4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ था, लेकिन अब पोस्ट कोविड सिम्टम में आंख की पलक के पीछे ना स्वेलिंग हो रही है और वो नहीं जा रही है। डॉक्टर को दिखाया, आई स्पेशलिस्ट को, वो बोल रहे हैं इसमें टाइम लगेगा। तो क्या ये पोस्ट कोविड सिम्टम है? प्रोफेसर सिन्हा, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आंख के पीछे स्वेलिंग। जी, मैं समझ गया। आपको अप्रैल में हुआ था कोविड और 1 मई को आप ठीक हो गए थे, और तो मैं समझता हूँ आपको 2 महीने लगभग हो रहे हैं कोविड के इन्फेक्शन से रिकवर होने के। तो अगर ऐसे भी आपका जो ये स्वेलिंग कोविड के टाइम पे ही शुरू हुआ था या पहले से था, ये मैं जानना चाहूंगा। स्वेलिंग आंखों में थी। Okay, I think his caller is not there. So I would like to tell कि अगर इस तरह की स्वेलिंग इनको परसिस्ट कर रही है, तो इनको अपने नियर बाई आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेकअप करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट में जो कोमॉर्बिड स्टेट होती है, जैसे डायबिटीज होती है, जिनको लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, या जिनको हम लोग स्टेरॉइड देते हैं ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन, जो मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में होते हैं पेशेंट, उन पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है और समटाइम चांसेस होते हैं कि उनमें फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। उसके कारण भी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, बट ये मैं बिना देखे नहीं कह सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं इनको ये एडवाइस करूंगा, ये अपने नियर बाय जो भी आंखों के डॉक्टर हैं या आंखों का अस्पताल है, उसमें जाके इसकी जांच कराएं और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक सवाल ये कि पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम्स दिखाई पड़ते हैं, जो सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं बच्चों में, क्या ये वही सारे सामान्य से हैं जो बड़ों में देखने को मिलते हैं, या बच्चों में कुछ अलग हैं? क्योंकि कई बार बच्चे एहसास नहीं कर पाते कि उनको अंदर से दिक्कत क्या हो रही, बट कई बार उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। किस तरीके से पेरेंट्स समझें इन दिक्कतों को और वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, बच्चों में जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, उनको एक इन्फ्लेमेटरी मसल सिंड्रोम भी नाम दिया गया है। तो बच्चों में जो सबसे ज्यादा है वो थकान है, कमजोरी है, मसल फटीग है। जब वो बच्चे खेलने जाएंगे तो उनको तुरंत थकान होने लगेगी, और ये जो आपकी जो मसल्स होती हैं, काफ मसल्स या दूसरी मसल्स, उसमें पेन रहेगा। इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं चल पाता है कि कोविड हुआ नहीं हुआ, और कोविड हो भी जाता है और इस तरह के पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा, क्योंकि बच्चों में आप अगर देखें कि पोस्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस या और दूसरी प्रॉब्लम्स वो ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन ये जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है ये बच्चों में काफी कॉमन होता है। और ऐसे बच्चों में कहते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, थोड़ा उनका डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए, और उनको जो है थोड़ा बेड रेस्ट की भी जरूरत होती है, कंप्लीट बेड रेस्ट की, जो अक्सर बच्चे नहीं लेते हैं। क्योंकि उनको इंश्योर करना, बड़ों को तो आप कह दीजिए बेड रेस्ट ले लीजिए, वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को कहिए बेड रेस्ट लेना तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए।
तो ये देखना पड़ता है, और उसके बावजूद भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती हैं तो फिर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट की जा सकती हैं। Okay. Pranil is our next caller from Bangalore. Pranil, please go ahead with your question. Yeah, hi. Actually, I got COVID positive in month of April and recovered by May 1st. So what has happened is I got measles in last 15 days. I had a small like chickenpox thing. So just wanted to know if this is symptom or a carryover of a COVID, or is it a normal thing, or it's a viral infection since it is rainy season, and moreover I have not gone outside like much. We just a normal locality to buy vegetables that are not exposed naturally. Dr. Sinha, measles or chickenpox post-COVID syndrome, or? Yeah. So, देखिए, okay, I got your complaint. You had COVID in April and got recovered in 1st May. And now recently I've got the measles, the chickenpox infection. So I just want to tell that post-COVID, we have kind of inflammatory state, and sometimes there is a low immunity also in some person, and especially in the person who have comorbid state, like diabetes, uncontrolled diabetes, or who had history of taking steroid during COVID infection, or other comorbid states like chronic kidney disease, chronic liver disease, and patient who have heart disease. So in these patients, there are chances of having any other opportunity infection. And sometimes because of low immunity, they can catch infection like measles or chickenpox. So this may be an incidental finding, or maybe sometime because of post-COVID, patient is having low immunity and they can catch these infection. Though it is not much mentioned in the literature, it may be incidental finding. So I will suggest he have to be contact the nearby infectious disease person or physician or dermatologist and show himself and take the treatment. राइट सर। डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक सामान्य सी समस्या जो कोविड के बाद ठीक होने के बाद में देखने को मिल रही वो खांसी को लेकर है, और ये क्यों बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, कई बार बीच में कम होती है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर बढ़ जाती है। तो इस जो ये वेरिएशन है इसमें क्या इसको प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत होती है, या इसको ऐसे ही चलने दिया जाए तो नजरअंदाज कर सकने की गुंजाइश होती है इसको? डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपने ठीक कहा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पोस्ट कोविड कॉफ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये एक तो मान के चलना चाहिए कि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपकी शुरू हुई है कोविड वायरस में, वायरस कहां से जाता है? वायरस जाता है नाक और गले के रास्ते से। तो फर्स्ट जो इन्फ्लेमेटरी साइट है आपकी वायरस की एंट्री के समय, वो नाक और साइनस और गला है, और ये लंबे समय तक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में बनी रहती है। कई लोगों को जब लंग भी इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां से भी कॉफ आ सकता है। तो कॉफ का जो सोर्स है वो गला भी हो सकता है और लंग्स भी हो सकता है। अब हमें देखने की जरूरत है कि पोस्ट कोविड में ये ड्राई कफ, बिल्कुल सही बात है, थोड़े लंबे समय तक परसिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं कि एक तो लोग स्टीम ले लेके परेशान हो गए होते हैं, तो पोस्ट कोविड में स्टीम लेना बंद कर देते हैं। तो एक तो स्टीम लेना चाहिए। स्टीम क्या करती है, जब हम स्टीम लेते हैं तो नाक से लेके और लंग तक जो इन्फ्लेमेटरी यानी जो कंजेशन है उसको कम करता है, और जब इन्फ्लेमेटरी कंजेशन को कम करेगा स्टीम, तो धीरे धीरे खांसी कम होती है। तो एक तो हमें स्टीम नहीं छोड़ना है, स्टीम लेने चाहिए। केवल सुबह 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम ले लें, इतनी स्टीम काफी है। कई बार तो लोग फिर दिन भर स्टीम लेने लगते हैं और मुंह जला लेते हैं, वो नहीं करना है। तो सिंपल सा 5 मिनट की स्टीम सुबह और 5 मिनट की शाम को स्टीम, ये एडवाइजेबल है। दूसरा, कुछ कॉफ सप्रेसेंट भी हम लोग डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं कि भाई डायबिटिक है तो शुगर फ्री वाला कप सिरप लेंगे, और नॉन डायबिटिक है तो दूसरा कप सिरप लेंगे। तो ये थोड़ा डॉक्टर की सलाह से कप सिरप लेना चाहिए। अब कप सिरप कोई मतलब आलू प्याज की तरह नहीं लेना चाहिए, घर में किचन में खत्म हो गया तो 2 किलो ले आए। तो कप सिरप जब आप ले रहे हो तो इसमें थोड़ा डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, और उसके हिसाब से, और उसमें भी देखना पड़ता है कि प्योर ड्राई कफ है या कफ के साथ थोड़ी सांस भी फूल रही है। तो कफ सिरप देखिए 3 तरह के होते हैं। एक प्योर ड्राई कफ यानी कफ सप्रेसेंट के लिए दिए जाते हैं, एक एक्सपेक्टोरेशन अगर बलगम आ रहा है तो उसके कफ सिरप अलग होते हैं, और तीसरे अगर सांस फूल रही है यानी ब्रोंकोस्पास्टिक कफ है तो उसके कफ सिरप अलग होते हैं। और इसी हिसाब से डॉक्टर, इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर के सलाह के हिसाब से कफ सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। खांसी हुई है तो जाएगी भी जरूर, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है। पोस्ट कोविड के जितने भी सिम्टम्स हैं
उसमें टाइम काफी लगता है, इसलिए धैर्य की भी जरूरत है। प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर, सलाह, डीडी न्यूज का देखना और इन सब का तो आप पालन करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी रखना जरूरी है। बिल्कुल, डीडी न्यूज का देखना, डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम का देखना। एक सवाल है आरेंद्र, विद योर परमिशन, फेसबुक पे रितेश पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर सिन्हा, व्हाट इज द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल टू बी मेंटेन्ड यूजिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फॉर पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस? It's a very good question. So, I would like to tell that we have certain guidelines as per ICMR and international guidelines are also there. So somebody is having post-lung fibrosis. So generally we advise them, they can stay at home and they can use the oxygen concentrator. So generally we have seen in many patients, they required around 2 to 3 liter per minute oxygen. Sometimes they require only 1 liter per minute oxygen. And we advise them to maintain their oxygen saturation more than 95%. More than 95%. More than 95%. So that is okay. Especially in the patient, when they go for sleep in the night, they have desaturation. So that time they may require 2 to 3 liter. Otherwise 1 to 2 liter are enough to maintain 95% of oxygen saturation. But I would like to tell here also, it is depend on severity of disease. If patient is having more damage of lung or they are having more fibrosis, we have seen many patients who had 100% involvement of lung due to COVID pneumonia, and they developed ARDS, and they are on ventilator for a long time in the ICU, and when they come out of ventilator, so they have a lot of damage in the lung, and they develop like fibrosis. They have in CT scan or CT scan they show GGOs, non-class obesity, they show bronchiectatic changes, and they can develop secondary infection also. So there is depend on patient to patient, and generally we have seen they require between 1 to 3 liter oxygen per minute, and they have to maintain oxygen saturation around 95 to 96%. राइट सर, एक दर्शक हमारे साथ में कोलकाता से चंद्रिका कुमार जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ बोलिए, चंद्रिका प्रसाद साहब मेरा नाम जी। सवाल पूछिए अपना। सवाल है कि मेरे वैक्सीन हाथ में, दाहिना हाथ में नोचनी होता है, अब वैक्सीन मैंने वैक्सीन ले कि नहीं, एलर्जी हो गया है। एलर्जी हो गया आपको? आपने वैक्सीन लिया है? नहीं ले कि नहीं ले। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि एलर्जी ना हो जाए, क्या मुझे वैक्सीन लेना है या नहीं, आप ये जानना चाहते हैं? जी नहीं, उनके हाथों में एलर्जी है, मैं समझ गया। ओके ठीक है, तो मैं वैक्सीन लूं या नहीं? ओके डॉक्टर प्लीज गो अहेड। आई गॉट द क्वेश्चन। यस सर, प्लीज गो अहेड। देखिए ऐसा है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं समझ गया। जैसे इन्होंने एलर्जी का नाम लिया, मैं वैसे ही समझ गया था इनका प्रश्न क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि छोटी मोटी एलर्जी हिंदुस्तान में 25% जनता को पाई जाती है। अब अगर 25% जनता को जो कह रही है कि हमें छोटी मोटी एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर हम उसको वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कहां से हम हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देंगे? तो छोटी मोटी एलर्जन, किसी को खुजली हो गई, थोड़ी चटकते हो गए, किसी को छींक आ गई, किसी में आंख में खुजली हो गई, किसी के गले में थोड़ी खांसी रहती है, खराश रहती है, ये इस टाइप की छोटी मोटी एलर्जी किसी को भी हो सकती है, और ये आप लोग बड़े आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक बार नहीं, मैं डॉक्टर सूर्यकांत आपको 100 बार ये कह सकता हूं कि छोटी मोटी एलर्जी से कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है किसी भी वैक्सीन का, इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन का। अब सवाल आता है कि कौन सी एलर्जी हो तो वैक्सीन ना लगवाएं। जी हाँ, ये सवाल जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी एलर्जी के वे रोगी हैं जिनको अगर वो एलर्जी होती है तो वो वैक्सीन ना लगवाएं। नंबर एक ड्रग एलर्जी, यानी आपने सुना होगा कि साहब उनको पेनिसिलिन से एलर्जी है, किसी को सल्फा से एलर्जी है, तो ऐसे लोग जिनको इंजेक्शन पेनिसिलिन या सल्फा ड्रग या किसी और दवा से एलर्जी हुई है, अर्थात उनको ये दवा खाई थी या इंजेक्शन लगवाया था तो पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे, होठ सूज गए थे, आंखें सूज गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, बीपी कम हो गया था, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा हुआ है, ऐसे टाइप की कोई एलर्जी किसी पेशेंट पर, तो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। दूसरे वो पेशेंट हैं जिनको बहुत ही सीवियर फूड एलर्जी है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि हमने साहब जिंदगी में एक बार अंडा खाया था, पूरे शरीर में चकत्ते हो गए थे, तो उनको सीवियर एग एलर्जी है, वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। और तीसरे वो एलर्जी के पेशेंट हैं जिनको किसी भी वैक्सीन के पास्ट में लगवाने से उसके किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी हुई थी।
चाहे बचपन में डीपीटी लगवाया हो या कोई लगवाया हो, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री इस तरह की है कि किसी भी वैक्सीन, नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली कोविड वैक्सीनेशन, पास्ट में किसी भी वैक्सीन से अगर एलर्जी हुई है, किसी भी वैक्सीन के कंपोनेंट से, तो तीसरे तरह के ये व्यक्ति हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। इन 3 लोग, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जो सीवियर ड्रग एलर्जी के पेशेंट हैं, सीवियर फूड एलर्जी के पेशेंट हैं, और तीसरे वो जिनको किसी वैक्सीन के कंपोनेंट से एलर्जी हुई है। इन 3 तरह के लोगों के अलावा जिनको छोटी मोटी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि देश में 25% लोग ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी एलर्जी की बीमारी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे सभी लोग जिनको छोटी मोटी की एलर्जी दिक्कत है वो सब कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये टाइम परमिट करे जी नहीं, प्लीज कंप्लीट योर आंसर एंड आई विल आस्क माय क्वेश्चन लेटर। ओके, बस मैं थोड़ा सा, जो अभी डॉक्टर संजीव बता रहे थे ऑक्सीजन, पोस्ट कोविड के बारे में, जो ऑक्सीजन बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि 95-96 पे रखना है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई हम अपने मरीज को सिलेंडर की नॉब इतनी ऐंठते हैं या कंसंट्रेटर की नॉब इतनी घुमा दें कि मेरे मरीज की ऑक्सीजन 100 रहे, हमेशा 98, 99, तो मेरा मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बहुत गलत धारणा है। मैं कहूंगा इससे बचिए। अगर आप अपने मरीज को ऑक्सीजन से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो कृपया याद रखिए मैजिक नंबर 94। बस केवल 94 या ज्यादा 95-96, इससे ज्यादा ऑक्सीजन मत ले जाइए, नहीं तो आपके मरीज को ऑक्सीजन विड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। कृपया 98, 99, 900। कई लोगों को उत्साह होता है, अरे भाई मेरे मरीज की ऑक्सीजन कम है तो चलो 99, 100 पे लगाते हैं, तो ऐसा कृपया ना करें। ओके, रिवाड़ी से दीपक है हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं और उनके सवाल के बाद मैं अपना भी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी वैक्सीन से जो जुड़ा है। दीपक, सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे को 1-1.5 महीना पहले हो गया था जी कोरोना, मेरी बीबी को भी हो गया था जी, उसको अब खांसी आती है जी। ओके, खांसी आती है आपको जी। डॉक्टर सिन्हा, पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोग ने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपको पोस्ट कोविड कफ हो रहा है तो हम लोगों ने, प्रोफेसर सुल्तान ने भी बताया कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है नेजल पैसेज में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप सुबह शाम जो है स्टीमुलेशन करें, और उसमें अगर बहुत लोगों को इरिटेशन होता है स्टीम से तो उसमें कार्बोल कैप्सूल, एक विक्स आता है, उसको भी मिला सकते हैं आप। उसे मिला लेंगे तो आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, और जो ड्राइनेस हो रही है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो भी ठीक हो जाएगी, और जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसको देखिए, स्टिमुलेशन आपको सुबह शाम जो है ये कम से कम हफ्ते 10 दिन लेना पड़ेगा, 1-2 दिन से काम नहीं चलेगा। और साथ में अगर बहुत ज्यादा कफ आ रहा है तो उसके लिए जो कफ सिरप है वो अपनी डॉक्टर की सलाह से लें, और साथ में जो कुछ एक्सरसाइजेज है, लंग फिजियोथेरेपी जिनको हम लोग कहते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये टॉलरेट कर सकते हैं कफ में तो ये माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थोड़ा वॉक कर सकते हैं, और हेल्दी डाइट लें, जैसे मैंने बताया हाई प्रोटीन डाइट एंड सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, और ध्यान रखिए समय के साथ ठीक हो जाए। जी डॉक्टर सूर्यकांत, जो आप बता रहे थे कि अगर कुछ लोगों की एक स्पेसिफिक फूड एलर्जी है, then they cannot, or they should refrain for going for vaccination. But in a COVID scenario, that is not really feasible and possible. So if one is having a specific food allergy and obviously one wants to get vaccinated, how do we go about it? So then he has to consult of course opinion of his allergy specialist. Okay. Well-known allergy specialist must be consulted because it's a very important situation. We don't know any anaphylaxis reaction, severe allergic reaction can occur after COVID vaccination. So I think such type of patient, they should be evaluated by the allergy specialist. That person is having egg allergy or some specific food allergy in the past, and patient has developed severe allergic symptoms, then of course he must consult to an allergy specialist before vaccination. That's a very important point. प्रोफेसर सिन्हा, एक सवाल ये इस बात को लेकर कि पोस्ट कोविड कई जो दिक्कतें लोगों को रहती हैं तो लोग खुद से कई प्रकार की जांचें कराने लगते हैं डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना, और ऐसे में कई बार वो HRCT भी कराने की बात होती है, चाहे वो एक्सरे कराने की बात होती है, इन दिक्कतों के चलते ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इन जांचों की जरूरत कब है और किन किन जांचों को ही डॉक्टर की सलाह पे कराने का मतलब बनता है?
नहीं, इसमें तो मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा आपको, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना है पोस्ट कोविड, तो हर जगह अब देखिए अधिकतर बड़े बड़े अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक बन गई है। आप वहां पर आए, वहां पर फॉलो अप करें, आप डॉक्टर से जांच, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद एक सेट प्रोटोकॉल है, हम लोग वही फॉलो करते हैं। अगर जरूरत है तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर से अगर जरूरत है तो हम सीआरपी कर सकते हैं। अगर कफ हो रहा है, परसिस्टेंट कफ है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग पहले चेस्ट एक्सरे करते हैं। हम लोग जनरली HRCT अवॉइड करते हैं क्योंकि काफी एक्सपोजर होता है उसमें जी। और चेस्ट एक्सरे से ही काफी चीजें बदल जाती हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं, स्टेथोस्कोप से चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं, तो उससे भी काफी चीजें बदल जाती हैं। तो मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि पहले तो अपने नियर बाय डॉक्टर जो भी हैं, या अगर पोस्ट कोविड क्लिनिक है तो वहां पर जाकर डॉक्टर से सलाह लें, और सलाह के अनुसार ही टेस्ट कराएं, बिना सलाह के कोई भी टेस्ट ना करें। राइट। Dr. Suryakant, also there is a tendency popping pills and those supplements, vitamins, zinc tablets, sharing COVID prescriptions and going for those extra supplements. Is that advisable? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बलशाली, शक्तिशाली, इम्यूनिटी से भरपूर, ताकत से भरपूर एक ही उदाहरण देखने को मिलता है, और वो है हनुमान जी। अब मैंने एक बार हनुमान जी से पूछा कि भाई सीता माता जी आपको कौन सा इम्यून बूस्टर देती थी, कौन सा सप्लीमेंट देती थी? तो भाई हनुमान जी को तो कोई सप्लीमेंट मिलता नहीं था, वो तो जब तक उनके साथ रहे, रामचंद्र जी के साथ कंदमूल फल खाते थे। तो अगर आपको इम्यूनिटी ढूंढनी है तो आप फलों में ढूंढिए, हरी सब्जी में ढूंढिए, आप जो है माँ के खाने में ढूंढिए, दादी के खाने में ढूंढिए, अरे भाई आंटी के चिप्स में ढूंढिए, अंकल के चिप्स में इम्यूनिटी कहां से रखी है। तो आप ये जान के चलिए कि ऐसा दुनिया में कोई सप्लीमेंट नहीं है, और ऐसा सप्लीमेंट अगर होता तो डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर संजीव सिन्हा को ये दवा कंपनी वाले आते हैं, ऐसे सैंपल में दे जाते हैं, तो हम तो अपने घर में कह देते भाई मुझे खाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संजीव अपने घर में कह देते, मैं भी अपनी पत्नी को कह देता कि भाई खाना मत बनाया करो, हमें तो सप्लीमेंट मिल जाते हैं, वहीं हॉस्पिटल में हम खा लेंगे, दैट्स ऑल। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि बाहर से अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट लेंगे तो आप जो है बहुत इम्यूनिटी वाले बन जाएंगे। Multivitamin and zinc tablets, Dr. Suryakant, multivitamin, zinc tablets, which are normally. ऐसा है। Yes. देखिए, हमें मल्टीविटामिन कभी कभी क्यों लिखनी पड़ती हैं? जैसे अभी भी कोविड के समय हमें विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे देश में डाइटरी पैटर्न खराब हो गया है। अगर हम डाइट अपनी बैलेंस रखें, अगर भाई हम एक नींबू रोज खा ले रहे हैं, संतरे के मौसम में संतरा खा ले रहे हैं, कभी कभी आंवला का मुरब्बा खा ले रहे हैं, तो हमें विटामिन सी की टैबलेट की क्या जरूरत है? अगर हम 1 घंटा धूप का सनलाइट का एक्सपोजर हो जा रहा है तो हमें विटामिन डी की टैबलेट की क्या जरूरत है? अगर हम हरी सब्जियां खा रहे हैं तो हमें विटामिन डी की क्या जरूरत है? So you're saying these minor lifestyle changes हमें करनी पड़ेंगी क्योंकि कोविड काल में for these natural intake of supplements rather than going for drugs. प्रोफेसर सिन्हा, वक्त लगभग खत्म हो रहा है। हम लोग एक सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि जो मानसिक दिक्कतें हैं उसको कई बार लोग समझ नहीं पाते कि मैं इस प्रकार की दिक्कत से गुजर रहा हूं। उस दिक्कत को समझना और उसको एड्रेस करना पोस्ट कोविड सिचुएशंस में इसको कैसे किया जाए, तमाम लोग क्योंकि आज भी वो घरों में ही तक सीमित बने हुए हैं। देखिए, इसमें तो मैंने जैसे बताया पहले भी कि एंजाइटी, डिप्रेशन और एल्डरली पेशेंट में डिलीरियम, लॉस ऑफ मेमोरी, ये चीजें बहुत ही कॉमन है। और ये इसमें देखिए, इसमें मैंने ये भी आपको बताया कि क्यों होता है ऐसा, कि देखिए काफी पेशेंट तो 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहते हैं, 10 डेज और 14 डेज आइसोलेशन, आइदर होम आइसोलेशन या अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तभी अकेले रहते हैं, उनसे उनके फैमिली वाले नहीं मिल सकते हैं। जो डॉक्टर्स आते हैं वो भी पूरे पीपी किट में ड्रेस पहन कर आते हैं, नर्सेस भी आती हैं ड्रेस में, और उनका कांटेक्ट फैमिली फ्रेंड सबसे दूर हो जाते हैं वो 15 दिन के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि हम पेशेंट को फोन अलाउ कर देते हैं, हम पेशेंट को वीडियो कॉल से अलाउ कर देते हैं। उससे जो है पेशेंट अपने फैमिली के टच में आ जाता है, क्योंकि उन दिनों पेशेंट के फैमिली मेंबर्स तो मिल नहीं सकते जब तक वो क्वारंटाइन या आइसोलेशन में है। तो इन सब चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर।
तो थोड़े दिनों तक ये देखा गया है कि एंजाइटी रहती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, कुछ लोगों को मेमोरी कम होने लगती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेशेंट से डिटेल में डिस्कशन करना पड़ता है, उनको हमें समझाना पड़ता है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग साइकेट्री के डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं और उनको दवाएं भी एंजियोलिटिक दे सकते हैं अगर डॉक्टर की सलाह से जरूरत पड़ती है। Right. Thank you very much, Dr. Sanjeev Sinha, Professor, Department of Medicines from AIIMS, New Delhi, and also many thanks, Dr. Suryakant, joining us from Lucknow, HOD, Respiratory Medicine, member, also Corona Task Force. Thank you both of you for joining us on the show. बिल्कुल, और हम एक बार इस बात को दर्शकों को फिर से कहेंगे कि कोविड की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको लगातार अपनाते रहिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। और उसके अलावा अगर आप वैक्सीन लगवाने के एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।